السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ایٹ 6 شو. میں ہوں سلما قاصر اور میں ہوں شاہد نسیم. باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم محمد شہباز شریف کا کہنا ہے کہ قومی اسمبلی میں میرے خطاب کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ جمہوری نظام کو منظم انداز میں چلانے کے لیے ضروری ہے کہ تمام ریاستی ادارے اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کریں. اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ اس بنیادی نقطے کو سمجھے بغیر ہم دائرے میں گھومتے رہیں گے اور کوئی پیش رفت نہیں ہوگی. ناظرین، وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ملک بھر میں مونسون اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں نقصان کے تعین کے لیے وفاقی وزراء کی کمیٹی تشکیل دی ہے جو آئندہ 4 دن کے اندر تمام متاثرہ علاقوں کا دورہ کرے گی، جس کی سفارشات کی روشنی میں قلیل، وسط اور طویل مدتی جامع پلان تشکیل دیا جائے گا. اسلام آباد میں حالیہ بارشوں اور سیلاب کے دوران نقصانات کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ متاثرہ افراد کی امداد کو 50,000 سے بڑھا کر 2 لاکھ تک کیا جائے. کچے اور پکے مکانات کی علیحدہ امداد کو ختم کر کے تمام متاثرہ مکانات کے لیے ایک جیسی امداد فراہم کی جائے. جزوی طور پر متاثرہ مکانات کی امدادی رقم 25,000 سے بڑھا کر 2.5 لاکھ اور مکمل طور پر متاثرہ گھروں کے لیے 50,000 سے بڑھا کر 5 لاکھ کیا جائے. وزیر اعظم نے کہا کہ وفاقی حکومت اس قدرتی آفت کے اثرات سے نمٹنے کے لیے صوبائی حکومتوں کی بھرپور معاونت کرے گی. پاکستان ہم سب کا ہے اور ہم سب کی ذمہ داری ہے. باہمی معاونت سے متاثرہ لوگوں کی مدد کریں گے. انہوں نے زور دیا کہ قومی اور صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی بجائے ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ کی حکمت عملی پر عمل درآمد یقینی بنائیں. متعلقہ وزارتیں اور ادارے بین الاقوامی ڈونر ایجنسی سے رابطہ قائم کر کے مالی معاونت کے حصول کے لیے کوششیں تیز کریں. وزیر اعظم نے کہا کہ کراچی میں حالیہ بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے سپریم کورٹ میں موجود فنڈ کی فراہمی کے لیے وفاقی حکومت معزز عدالت کو خط لکھے گی. محمد شہباز شریف نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی موجودہ دور کی ایک حقیقت ہے جس کے اثرات پاکستان سمیت پوری دنیا میں تباہی برپا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ بارشوں اور سیلاب کے دوران پی ڈی ایم میں، این ڈی ایم میں اور صوبائی حکومتوں کی امدادی کارروائیاں قابل تحسین ہیں. انہوں نے ہدایات جاری کی کہ قومی اور صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی بجائے ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ کی حکمت عملی پر عمل درآمد یقینی بنائیں. اجلاس کو حالیہ مانسون بارشوں اور سیلابی صورتحال کے بارے میں بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ خطے میں دیگر ملکوں کی طرح پاکستان بھی موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے شدید متاثر ہو رہا ہے. چین، بنگلہ دیش، افغانستان اور بھارت بھی حالیہ مانسون میں شدید تباہی کا زیر اثر رہے. اس سال پاکستان میں معمول سے زیادہ 4 ہیٹ ویوز، شدید پری مونسون اور مونسون بارشیں ہوئیں. پری مانسون گزشتہ 30 سال کی اوسط کے مقابلے میں 67% جبکہ مانسون بارشیں 193% زائد ہوئیں. مانسون بارشوں کا بلوچستان میں تناسب گزشتہ 30 سال کی اوسط کے مقابلے میں 467% جبکہ سندھ میں 390% زیادہ ریکارڈ کیا گیا. اجلاس کو بتایا گیا کہ مجموعی طور پر اب تک اسلام آباد میں 1، بلوچستان میں 106، سندھ میں 90، خیبر پختونخوا میں 69، پنجاب میں 74 جبکہ گلگت بلتستان میں 8 اور آزاد کشمیر میں 6 لوگوں کی اموات ہوئیں اور پورے پاکستان میں زخمیوں کی تعداد 406 ہے. شرکا کو متاثرہ سڑکوں، منہدم ہونے والے رابطہ پلوں، مکانات اور مویشیوں کے نقصان کے بارے میں بھی تفصیلی طور پر آگاہ کیا گیا. اجلاس کو بتایا گیا کہ پی ڈی ایم اے اور متعلقہ این ڈی ایم ایز کی جانب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں. صوبائی انتظامیہ اور نیشنل ہائی وے اتھارٹی متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں اور انفراسٹرکچر کی بحالی کے کام میں مصروف ہے. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کافی دن پہلے فورن فنڈنگ کیس کی سماعت مکمل کر چکا ہے اور فیصلہ محفوظ ہے، تو اب سنانے میں کیا رکاوٹ ہے؟ اتحادی جماعتوں کا پرزور مطالبہ ہے کہ فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ جلد سنایا جائے. اسلام آباد میں نیوز کانفرنس میں وزیر داخلہ نے کہا کہ کیس میں ثابت ہو چکا ہے 300 سے زائد افراد نے پی ٹی آئی کو باہر سے فنڈنگ کی اور $70 کروڑ سے زائد غیر قانونی رقم کا پتہ چلا ہے. پی ٹی آئی نے بچنے کے لیے کہ یہ کیس جو ہے یہ کنکلوڈ نہ ہو تو اتنی مرتبہ 50 مرتبہ انہوں نے جو ہے وہ ملتوی کروایا کیس، ایک بہانے یا دوسرے بہانے پہ، اور 9 ریٹ پٹیشنز کی ہیں اور اس طرح سے 8 سال میں جو ہے یہ کیس کنکلوڈ نہیں ہو سکا. اب جب کنکلوڈ ہو گیا ہے اور فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے تو اب ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اب الیکشن کمیشن جو ہے اب وہاں پہ کیا رکاوٹ ہے اور کیا اس میں اب مسئلہ ہے کہ یہ محفوظ فیصلہ جو ہے یہ اناؤنس نہیں کیا جا رہا. تو اس لیے پی ایم ایل این کا، گورنمنٹ کا، تمام سیاسی جماعتوں کا، حکومتی اتحاد کا، کیبنٹ میں بھی کل اس بات کے اوپر تشویش کا اظہار کیا گیا.
ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ فارن فنڈنگ اکاؤنٹ کا جو فیصلہ ہے اسے فی الفور جو ہے اسے اناؤنس کیا جائے. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ مہنگائی کی وجہ سے سابق حکومت کا IMF کے ساتھ کڑی شرائط پر معاہدہ ہوا ہے. ہمیں مجبوری میں پیٹرولیم مصنوعات اور بجلی کی قیمتیں بڑھانا پڑیں، لیکن ان مشکل فیصلوں سے ملکی معیشت بحال کرنے میں کامیابی ملی ہے. جو پیٹرول کی اور بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اس کا معاہدہ تو یہ کر کے گیا ہے. یہ باقاعدہ جو ہے وہ شوکت ترین صاحب کے سگنیچر ہے IMF کے ساتھ. وہ دکھاتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں آپ کا وعدہ ہے، آپ نے اس کے مطابق کرنے ہیں. تو مہنگائی اگر ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے ہوئی ہے نا، اور کوئی تو ہم نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے ہمیں اس بات کا جو ہے وہ دوش دیا جا سکے. تو اس لیے ہم جو ہے وہ اس بات کی ذمہ داری بھی لیتے ہیں اور اس بات کا کریڈٹ بھی بالکل لیں گے. ہمیں ملے گا انشاءاللہ تعالی کہ ہم نے ملک کو جو ہے وہ ڈیفالٹ کی سٹیج سے جو ہے وہ باہر نکالا. تمام اتحادیوں کا مطالبہ ہے کہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ جلد سنایا جائے. ناظرین، سیاسی صورتحال اور فارن فنڈنگ کیس کی اہمیت پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر اس وقت موجود ہیں سیاسی تجزیہ کار فاروق عادل صاحب. فاروق صاحب، بہت شکریہ آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو وقت دیا. سر، تمام اتحادی جماعتیں ایک بار پھر سے مطالبہ کر رہی ہیں کہ الیکشن کمیشن فارن فنڈنگ کیس کا جو فیصلہ محفوظ تھا وہ جلد از جلد سنا دے. موجودہ سیاسی حالات کے تناظر میں یہ فیصلہ سنایا جانا کتنا ضروری سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، فیصلے تو جو بھی ہو، جو بھی مقدمہ ہو، اس کا فوری طور سے سامنے آنا چاہیے، اور اس کا التوا جو ہے وہ ریاست کے لیے بڑا خطرناک ہوتا ہے. اس کا جو پہلا جو نامناسب اثر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ تاثر قوی ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے کہ ادارے کمزور ہیں، ادارے یا کسی کے دباؤ میں آ گئے ہیں یا وہ فیصلہ کرنے کی اہلیت اور صلاحیت نہیں رکھتے. کہ یہ 8-10 سال سے یہ التوا کا شکار ہے یہ معاملہ. اس میں دراصل آپ کی ریاست کو، ریاست کے اداروں کو، ان سب کو ایک شخص کا یرغمال بنا دیا ہے، اور ایک سیاسی جماعت، ایک شخص، اس کے لیے ایسا لگتا ہے کہ قانون کوئی اور ہے، باقی سیاستدانوں، سیاسی جماعتوں کے لیے قانون کوئی اور ہے. تو اس چیز میں سب سے زیادہ جو نقصان پہنچایا ہے ریاست کی عملداری کو نقصان پہنچایا ہے، اور یہ جتنی تاخیر کرتے چلے جائیں گے اس ملک میں لا قانونیت بڑھتی جائے گی. بعض سیاستدانوں کی جو انانیت ہے اور جو ان کا غرور ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا، اور اس کے نتیجے میں ایک نظیر قائم ہوگی، اور آنے والے زمانوں میں سیاسی جماعتیں لا قانونیت بھی کریں گی، ممنوعہ فنڈنگ بھی کریں گی، اور وہ دن بنائیں گی. تو اس تناظر میں یہ بہت ضروری ہے. اور پاکستان اس وقت جس تقسیم کا شکار ہے، اس تقسیم سے اگر نکلنا ہے تو قوم کو آپ نے درست فیصلے، درست جو ہے حقائق بتانے ہیں. یہ جو فیصلہ ہے یہ قوم کو درست حقائق بھی بتائے گا، اور ایک یوں سمجھیے کہ مناسب لفظ یہ ہوگا کہ ایک ان تک یعنی سبق دے گا کہ اگر کوئی آپ لا قانونیت کریں گے، اگر آپ ریاست سے ماورا ہونے کی کوشش کریں گے، اگر آپ آئین کو مذاق بنا دیں گے، اور اگر آپ غیر ملکی سرمایہ سے اس ملک کو فتح کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو اس کی اجازت نہیں ہوگی. تو یہ بہت ناگزیر ہے، اس نے ریاست کو چیلنج کر دیا ہے فیصلے. صحیح. اچھا فاروق صاحب، PTI کی جانب سے اداروں کو متنازع بنانے کا سلسلہ جاری ہے، دیگر بہت سے اداروں کو بھی وہ متنازع بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور اب خصوصاً الیکشن کمیشن کی جانب ان کا رخ ہے، اور الیکشن کمیشنر کی جو ذات ہے ان کی براہ راست تنقید کا ہدف بن رہی ہے. حالانکہ ان کی تقرری بھی تحریک انصاف کی ہی مشاورت سے ہوئی تھی. یہ طرز عمل فیصلے پر اثر انداز ہونے کی کوشش معلوم ہوتا ہے، کیا کہیں گے؟ آپ کا تجزیہ بالکل درست ہے. یہ طرز عمل فیصلے پر نہ صرف اثر انداز ہونے کی کوشش ہے بلکہ ادارے کو دباؤ میں لانے کی کوشش ہے. اگر آپ ادارے کو دباؤ میں لا کر ایک حقیقت سے نظر نہ صرف خود چلانے کی کوشش کریں گے بلکہ قوم کو آپ اندھیرے میں لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو بیسیکلی اس ملک میں قانون کی عملداری ہونی ہے یا نہیں ہونی، اس ملک کے آئین کو بالادستی حاصل ہے یا نہیں ہونی، یہ کیس اس کا ٹیسٹ کیس بن گیا ہے. اور اگر آپ نے اس ملک کے عوام کو یہ یقین دلانا ہے کہ ان کے
उन पर कोई गैर मुल्की ताकत असर अंदाज नहीं हो सकती, उनके हकूक को रखत नहीं कर सकती और सरमाए की ताकत से इस मुल्क को यकवार नहीं बना सकती, तो आपको इस केस का फैसला करना होगा। सही फारूक साहब, इमरान खान साहब को तो उनकी पार्टी मिस्टर क्लीन कहती है, फिर फैसला आने से डर किस बात का? ये सवाल तो आपको इमरान खान से करना चाहिए। लेकिन सर आप तज्जिया तो दे ही सकते हैं इस पे। देखिए, आप इमरान खान को मिस्टर क्लीन कहें या कुछ पाकबाज कहें, आप उनके लिए कोई भी अच्छा सा लक़ब तखलीक कर लें, इससे फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान की शख्सियत तजादात का शिकार है, सिर्फ फॉरेन फंडिंग केस से नहीं है। ये जो 2-2 कैरेट की या 5-5 कैरेट की जो अंगूठियों के केसेस चले हैं, या जो मिसरा गोभी की बातें सामने आई हैं, या जो आपके तोशा खाना केस सामने आया है, या जो उससे पहले हेलीकॉप्टर केस है, या इससे पहले वो किसी शहर के नाम से वो एक स्कैंडल है, या BRT है, इसमें कौन सी चीज ऐसी है जो इमरान खान को मिस्टर क्लीन साबित करती है? फिर ये बात नहीं है। फिर पाकिस्तान के साफ और क्लीन और ईमानदार तरीन शख्स हर उनके हामी को, मुखालिफ को इस बात पर यानी यकीन है कि जस्टिस वजीरुद्दीन साहब से ज्यादा इस मुल्क में बाकिरदार आदमी कोई नहीं है। जस्टिस वजीरुद्दीन किसी तबदील के खौफ के बगैर ये दावा कर चुके हैं कि उनके तो घर का खर्च भी अपने पैसों से नहीं चलता, और ये तकरार हुई। जस्टिस वजीरुद्दीन को गालियां बहुत दी गई, उन्हें बुरा भला बहुत कहा गया, लेकिन कोई है इमरान खान या इमरान खान की जमात या उनका कोई साथी जिन्होंने जस्टिस वजीरुद्दीन को अदालत में चैलेंज किया हो? अगर उन्होंने चैलेंज नहीं किया तो इसका मतलब ये है कि उनकी ईमानदारी से कोई शुबे से बाजा नहीं है। उनके मिस्टर क्लीन होने का पार्सल जस्टिस वजीरुद्दीन ने चैलेंज नहीं किया, इसका भाड़ा फोड़ दिया। सही, बहुत शुक्रिया फारूक आदिल साहब, तज्जियाकार थे और इस हवाले से हमारे साथ अपना ओपिनियन जो है वो शेयर करे थे। आपके इस कीमती वक्त के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कुछ दीगर खबरों की जानिब रुख करेंगे और मौसम के हवाले से कुछ बात करेंगे। पाकिस्तान के अंदर मौसम ने इस बार बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान का सामना करना पड़ा है, और पहले प्री मानसून बारिशें थी, फिर उसके बाद मानसून का स्पेल जो है वो स्टार्ट हुआ, और इसके अंदर पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अब तक करीबन 106 अमवात भी हो चुकी हैं। सो ये सब कुछ हो रहा है मौसमियाती तब्दीली के हवाले से। इस हवाले से अब कुछ खबरें हम शामिल करेंगे। बिल्कुल, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि मौसमियाती तब्दीली मौजूदा दौर की एक ऐसी हकीकत है जिसके नतीजे में पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक शदीद मुतासिर हो रहे हैं। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि हालिया बारिशें और सैलाबी सूरत हाल इसी सिलसिले की एक कड़ी है। हुकूमत अपने तरक्याती अहदाफ को मौसमियाती तब्दीली की ज़रूरियात से हम आहंग कर रही है। नाज़रीन, इसी हवाले से कुछ मजीद बात भी करेंगे। हमारे साथ लाइन पर हमें ज्वाइन किया है डायरेक्टर मेट लाहौर से चौधरी असलम साहब ने। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। क्या कहेंगे मौसमियाती तब्दीलियों की सूरत में? पहले प्री मानसून का एक स्पेल था, फिर उसके बाद मानसून के अंदर बहुत ज़्यादा हमने देखा कि बारिशें और सैलाबी सूरत हाल का पाकिस्तान को सामना है, और कुछ अमवात भी इस सिलसिले में हो चुकी हैं। करीबन 100 से ज़ायद लोग जो हैं वो अपनी जान की बाजी भी हार चुके हैं। हमें मौसम की ओवरऑल सूरत हाल से कुछ आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अभी मॉनसून एक्टिव फेज में है और मुख्तलिफ इलाकों में बारिश दे रहा है। अभी जैसे महकमा मौसमियात ने 31 तारीख तक प्रेस रिलीज इशू किया हुआ है, उसके मुताबिक काफ़ी इलाकों में बारिश हो रही है। और जो हमारे बड़े शहर हैं जैसे लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, पिंडी, गुजरांवाला, इसमें हैवी फॉल की भी फोरकास्ट दी हुई है और कई इलाकों में बारिशें हो रही हैं, अभी भी हो रही हैं, जैसे साउथ पंजाब में या बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों में। तो अभी जो एक्टिव फेज में और काफ़ी बारिशें हो चुकी हैं और दरियाओं में फ्लड का भी चांसेस है अभी जो। और इसमें एक और चीज़ ऐड कर दूं कि आज महकमा मौसमियात में हमारे लाहौर सेंटर में जो फ्लड फोरकास्टिंग डिवीज़न है, उसने दरिया चराब के लिए मराला, खानकी और कादराबाद के लिए हाई फ्लड की वार्निंग इशू की है। तो बाकी सारे महकमों को भी जो डिसमिनेट हो गई है।
तमाम महकमे इस बारे में ज़ाहिर कोऑर्डिनेशन के साथ आगे बढ़ रहे होंगे चौधरी असलम साहब, लेकिन कुछ एरियाज़ में हम देख रहे हैं कि अर्बन फ्लडिंग बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है हैवी रेनफॉल की वजह से। हैवी स्पेल्स जो हैं वो मज़ीद कहाँ पे एक्सपेक्टेड है? जैसे आपने कहा कि 31 जुलाई तक बारिशें होंगी, और ये जो अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल हम देख रहे हैं, कहीं से कोई क्लाउड बर्स्ट की भी इतलात मिली है इस बार या ऐसा नहीं हुआ? मैडम, ये तो मॉनसून एक्टिव है, उसकी वजह से बारिशें हो रही हैं। क्लाउड बर्स्ट तो आप नहीं कह सकते इसको, क्योंकि ये तो रूटीन में जब हम हैवी फॉल देते हैं तो इसमें बारिशें मॉनसून में किसी शॉर्ट स्पेल में ज़्यादा हो जाती हैं तो अर्बन फ्लडिंग हो जाती है उस एरिया में। तो इसी की वजह से जो मॉनसून एक्टिव फेज है, मैंने कहा, इसी की वजह से बारिशें हो रही हैं। अच्छा चौधरी असलम साहब, हमें इस्लामाबाद और रावलपिंडी के हवाले से भी कुछ बताइएगा, क्योंकि अभी करीबन कोई 2 से 3 दिन पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई और जो इलाके, जो नाला लई के करीब के जो इलाके थे, वहाँ पर पानी भी बहुत ज़्यादा जमा हो गया, लोगों को भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई जो बाजार थे वो भी पानी की वजह से डूब गए और लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ। सो आने वाले जो 5-7 दिन हैं या जो 10 दिन हैं, इसके हवाले से हमें रावलपिंडी इस्लामाबाद के बारे में भी कुछ बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा, नाला लई वो बिल्कुल उसकी सतह काफ़ी बुलंद हो गई थी, और उसमें अभी भी अगले 2 से 3 दिन जो है ना, इसमें रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी काफ़ी अच्छी बारिशें हैं, और अगले जो 48 आवर्स आप कह सकते हैं, तो इसमें मज़ीद बारिशें होंगी और नाला लई की सतह भी बुलंद होगी। इसलिए मैं आपके साथ से रिक्वेस्ट करता हूँ लोगों से कि जो साथ साथ जो नाला लई के वो अपने कोई अरेंजमेंट मैनेज करें इसके वेदर के लिहाज से। सही, बहुत शुक्रिया। डायरेक्टर महकमा मौसमियात लाहौर से चौधरी असलम साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे और मौसम के हवाले से बता रहे थे, और ख़ास तौर पर उन्होंने जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोग, वो लोग जो नाला लई के इर्द गिर्द रहते हैं या उसके जो इर्द गिर्द के जो इलाके हैं वहाँ पर उनका कारोबार जो है उससे वाबस्ता है, उनके लिए उन्होंने कहा कि एहतियाती तदाबीर जो हैं वो इख्तियार करें, और आने वाली जो 48 घंटे हैं वो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस दौरान जो बारिशें हैं वो मज़ीद होंगी, गालिबन आज भी बारिश हो रही है इस्लामाबाद के अंदर। कुछ दीगर अहम स्टोरीज पर भी हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक से वापस आने के बाद। में जश्न आजादी की रंगारंग तकरीबात का आगाज। इफ्तिताही तकरीबात आज शाम 8 बजे विफाकी और सूबाई दारुल हुकूमतों में एक साथ। लाइव म्यूजिक, आतिशबाजी, लेजर लाइट शो, फ्री एंट्री, मिलकर करें अज़्म आली शान, शाद रहे पाकिस्तान। वेलकम बैक। कुछ मजीद खबरों में आपको बताएं कि वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगजेब का कहना है कि याद सादी की क़यादत में पाकिस्तान की पहली पार्लियामेंट है जिसने पायदार तरक्याती अहदाफ को इदाराजाती शक्ल दी है। उन्होंने कहा कि जब तक पार्लियामेंटेरियन और मकामी हुकूमतों के नुमाइंदे पायदार तरक्याती अहदाफ के लिए मशगूल नहीं होंगे, किसी भी तरक्याती हदफ का हुसूल मुमकिन नहीं हो सकता। इस बारे में रिपोर्ट करेंगे ज़िशान अली भट्टी। कौमी असम्बली के ज़ेर इत्माम तरक्याती अहदाफ पर 2 रोज़ा सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार के इख्तितामी सेशन से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगजेब ने कहा कि दुनिया पायदार तरक्याती अहदाफ से आगे बढ़ रही है। 2022 से 2030 तक मॉनिटरिंग होगी कि टारगेट्स किस तरह पूरे हुए। अब हमें SDGs एजेंडा इम्प्लीमेंटेशन से SDGs प्रो लेजिस्लेशन की तरफ जाना है, जो अगला स्टेप है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेजिस्लेट करके हम इन गोल्स को अचीव भी कर सकते हैं और ऐसी इनेबलिंग इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं उस लेजिस्लेशन के ज़रिए जहाँ जहाँ ब्लॉकेट्स हैं, जहाँ जहाँ
बॉटल नेक्स हैं, जहाँ जहाँ ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ कानून साजी के ज़रिए इम्प्लीमेंट हो सकती हैं। वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब का कहना था कि ज़िलाई और यूनियन कौंसिल की सतह पर भी नौजवानों को पायदार तरक्याती अहदाफ की पॉलिसी साजी में शामिल करने की ज़रूरत है। जिन जिन मुल्कों में लोकलाइजेशन ऑफ SDG एजेंडा हो गई, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ SDGs हो गई, करिकुलम इंटीग्रेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हुआ, उन्होंने ही अपने टारगेट्स पूरे किए हैं। और बहुत ही ज़्यादा केस स्टडीज़ मौजूद हैं कि किस तरह करिकुलम के साथ एज अ टूल इस्तेमाल करके आप यूथ को, बच्चों को, स्टूडेंट्स को इसमें इंगेज करते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगजेब का मजीद कहना था कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से इस वक्त मुल्क शदीद सैलाबी सूरत हाल से दो चार है। SDGs का फ्रेमवर्क पूरी दुनिया समेत हमसाया ममालिक में भी काम कर रहा है। ज़िशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। 75वें जश्न आज़ादी की रंगारंग तकरीबात का आगाज। इफ्तिताही तकरीबात आज शाम 8 बजे विफाकी और सूबाई दारुल हुकूमतों में एक साथ। लाइव म्यूजिक, आतिशबाजी, लेजर लाइट शो, फ्री एंट्री। वज़ारत इत्तलात और नशरियात और CDA के ज़ेर इंतज़ाम पाकिस्तान की 75वें जश्न आज़ादी की अज़ीमुश्शान इफ्तिताही तकरीब आज शाम 8 बजे डी चौक इस्लामाबाद में होगी। इस तकरीब में लेज़र लाइट शो, आतिशबाजी और लाइव म्यूजिक का भी एहतमाम होगा। बिल्कुल नाज़रीन, और मारूफ गुलकार साहिर अली बग्गा, मलकू, हुमैरा अरशद, सोनिया अजीम, मोहम्मद अली और शान खान अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे। इफ्तिताही तकरीब सूबाई दारुल हुकूमतों कराची में 3 तलवार और क्लिफ्टन लाहौर में लिबर्टी चौक और गुलबर्ग, जबकि कोचा के मीज़ान चौक में बड़ी स्क्रीन्स पर दिखाई जाएगी। इस हवाले से मजीद जानते हैं, इस्लामाबाद में हमारे नुमाइंदे इस वक्त मौजूद हैं रिजवान आरिफ, उनसे। रिजवान, हमें बताइएगा इस वक्त आप किस जगह पर मौजूद हैं और क्या मनाज़िर देख रहे हैं आप? जी, इस वक्त मैं डी चौक इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और अज़्म आलीशान शाद है पाकिस्तान के उन्वान से पाकिस्तान की 75वीं जो जश्न आज़ादी की इफ्तिताही तकरीबात जो है वो अपने आखिरी मराहिल में पहुँच चुकी हैं। इस वक्त मेरे अकब में आप वो स्टेज देख सकते हैं जहाँ पर आज शब 8 बजे जो है वो पाकिस्तान की जो जश्न आज़ादी 75वीं जश्न आज़ादी है उस हवाले से एक बहुत ही ज़बरदस्त रंगारंग तकरीब का जो है वो अहतमाम होने जा रहा है। पाकिस्तान टेलीविज़न पर ये तकरीब जो है वो बराह रास्त भी दिखाई जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर जो नामवर गुलकार हैं साहिर अली बग्गा, हुमैरा और इसके अलावा और भी जो दीगर नामवर गुलकार हैं वो अपने यहाँ पर फ़न का मुजाहरा भी करेंगे। यहाँ पर लेज़र शो भी होगा और इसके अलावा आतिशबाजी का भी जो है वो इंतज़ाम किया गया है। आवाम जो इसके अलावा इस्लामाबाद समेत जो पाकिस्तान के दारुल हुकूमत है वहाँ पर ये तकरीब जो है वो बराह रास्त दिखाई जाएगी। बहुत शुक्रिया रिजवान आरिफ, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और 14 अगस्त के आगाज़ के लिए, उसके इस्तकबाल के लिए बाकायदा इन तकरीबात का आगाज़ किया जा रहा है, जिसके ऊपर रिजवान आरिफ इस वक्त इस्लामाबाद में डी चौक के मकाम पर मौजूद थे, जहाँ से उन्होंने हमें जश्न आज़ादी की अज़ीमुश्शान जो इफ्तिताही तकरीब है जिसका आगाज़ 8 बजे होगा उसके हवाले से हमें आगाह किया। सो अगर आप भी इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं तो ज़रूर 8 बजे के करीब आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। कुछ दीगर जो खबरें हैं उनके अंदर भी हम शामिल करेंगे, और एक खबर जो हमसे मुतल्लिक और आपसे मुतल्लिक भी है, यानी कि वो सहाफ़त से मुतल्लिक है, इब्लाग से मुतल्लिक है, उसके हवाले से भी हम कुछ बात करेंगे। आपको बताएंगे तहरीक आज़ादी से यौम आज़ादी तक का सफ़र, क़याम पाकिस्तान की डायमंड जुबली भरपूर मिली जोश जज्बे और यकजहती के साथ मनाई जा रही है, और मुस्लिम लीग और मुसलमानों से खाइफ हिंदू मीडिया मुसलमान मुखालिफ प्रोपेगेंडे में पेश रहा। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने सहाफ़त पर खुसूसी तवज्जो दी और मुसलमानों के लिए अंग्रेज़ी अखबार की इशाअत की। दीगर कई अखबारात और जराइद ने भी तहरीक आज़ादी में मुसलमानों के मौक़िफ़ की भरपूर तर्जुमानी की। इस बारे में वकार हैदर ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। कौम की तरक्की और बहबूद के लिए सहाफ़त एक अहम ज़रूरत है, ये कहना था कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का। कायद का सिर्फ ये फरमान ही सहाफ़त जैसे अजीम शोबे के लिए किसी फ़ख्र से कम नहीं। तहरीक आज़ादी में भी अखबारात और रसायल ने अहम किरदार अदा किया। 1903 में हफ्त रोज़ा ज़मींदार शुरू हुआ, जो 5 अक्टूबर 1911 को बाबाए सहाफ़त मौलाना ज़फ़र अली खान की दारत में बतौर रोजनामा शाया होना शुरू हो गया। अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि ज़फ़र अली खान का कलम दीन के बड़े बड़े मुजाहिदीन की तलवार से कम नहीं। मलिक बरकत अली का अंग्रेजी अखबार न्यू टाइम्स भी मुसलमानों के नुक्ता नज़र की तर्जुमानी के लिहाज से मुसलमान हलकों में मकबूल रहा। 1940 का दौर न सिर्फ मुसलमानों बल्कि मुस्लिम लीग और मुस्लिम प्रेस मीडिया के लिए भी बेहद नाजुक था।
उसी वक्त हमीद निजामी की जेर इदारत 15 रोजा अखबार नए वक्त लाहौर शुरू हुआ, जिसने मुसलमानों और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नुक्ता नजर की कामयाबी के साथ मौसर तर्जमानी की। 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई तो हिंदू अखबारात और जरायद यानी हिंदू मीडिया ने इसकी मुखालफत शुरू कर दी। हिंदू मीडिया ने तहरीक पाकिस्तान और कायद आजम के खिलाफ मुहिम शुरू की थी। कायद आजम ने मुतासबाना मुखालफत के दिफा के लिए मुसलमान मीडिया की जरूरत महसूस की और डॉन ट्रस्ट कायम कर दिया। कायद आजम की निगरानी में दिल्ली से अंग्रेजी अखबार डॉन 26 अक्टूबर 1941 को मुस्लिम लीग के तर्जमान की हैसियत से हफ्त रोजा के तौर पर शुरू किया गया। डॉन ने तहरीक पाकिस्तान में अहम किरदार अदा किया। तहरीक आज़ादी में उर्दू जबान में बेशुमार अखबारात, रसायल और जरायद शाया होते रहे जो नजरिए पाकिस्तान और तहरीक पाकिस्तान की तायद में थे। उनमें तहजीबुल अखलाक, उर्दू मौला, जमींदार, अल हिलाल, हमदर्द, कॉमरेड, ईमान, एहसान, मंशूर, नए वक्त और तंजीम के नाम काबिल जिक्र हैं। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वकार हैदर की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। कुछ दीगर स्टोरीज शामिल करेंगे, उन पर बात भी होगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। ख्वाजा नाजिमुद्दीन 19 जुलाई 1894 को बंगाल में पैदा हुए। वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की 25 रुकनी खुसूसी वर्किंग कमेटी का हिस्सा थे, जिसने करारदाद लाहौर का मुसव्वदा तैयार किया। 1943 से 1945 तक वो बंगाल के वजीर आजम रहे। 1948 में कायद आजम की वफात के बाद वो गवर्नर जनरल बने। 1951 में लियाकत अली खान की शहादत के बाद उन्होंने वजीर आजम का ओहदा संभाला। 22 अक्टूबर 1964 को उनका इंतकाल हुआ। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, मुत्तहिद होकर रहिए, सिर्फ इसी तरीके से आप पाकिस्तान को दुनिया की अजीम तरीन सल्तनत बना सकते हैं। अज़्मे आली शान, शाद रहे पाकिस्तान। नवाबजादा लियाकत अली खान 1 अक्टूबर 1895 को करनाल में पैदा हुए। उन्हें कायद मिल्लत और शहीद मिल्लत भी कहा जाता है। 1923 में वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शामिल हुए। लियाकत अली खान ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की 25 रुकनी खुसूसी वर्किंग कमेटी का हिस्सा थे, जिसने करारदाद लाहौर का मुसव्वदा तैयार किया। 1940 में वो मुस्लिम लीग पार्लिमानी पार्टी के डिप्टी लीडर मुंतखब हुए। 1945-46 के इलेक्शन में वो मुस्लिम लीग के मरकजी पार्लिमानी बोर्ड के चेयरमैन मुंतखब हुए। 14 अगस्त 1947 को मोहम्मद अली जिन्ना ने उन्हें पाकिस्तान का पहला वजीर आजम मुकर्रर किया। 16 अक्टूबर 1951 को उन्हें रावलपिंडी में शहीद कर दिया गया।
नाज़रीन, पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में से है जहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों को न सिर्फ मजहबी आज़ादी हासिल है बल्कि उनके माबैन मजहबी रवादारी की खूबसूरत फ़ज़ा भी कायम है। इस सिलसिले में देखते हैं पेशावर से मिसाल साजिद की ये रिपोर्ट। पेशावर में माल रोड पर वाक़ चर्च और मस्जिद वाहिद ऐसी जगह है जहां आकर मज़ाहिब का एहतराम हकीकत लगता है। मखसूस आयाम में इन दोनों मजहबी इबादत गाहों में दो मुख्तलिफ अकायद के लोग आज़ादाना तौर पर अपनी इबादत करते तवातर से यहाँ आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ इस मुल्क के अंदर बेशुमार मज़ाहिब के लोग रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह किसी मुसलमान की तरफ से उनको तकलीफ़ नहीं पहुँची। 50 साल हो गए, कोई गिला शिकवा नहीं किया, हमें भी उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है। एहतराम है, हम उनका एहतराम करते हैं, वो हमारा एहतराम करते हैं। जामे मस्जिद दरवेश से मुत्तसिल कैथोलिक चर्च में इतवार और मंगल के रोज सर्विस के लिए रिवायती घंटा बजता है तो ईसाई फैमिलीज इबादत के लिए मरकजी हॉल में जमा हो जाती हैं। मैं हर मजहब का एहतराम करता हूँ, हर मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले जो इंसान है उसका मैं एहतराम करता हूँ और मेरा ये ईमान है कि अल्लाह ताला ने जैसे एक बाग होता है, ये दुनिया एक बहुत खूबसूरत बाग है जिसमें तरह तरह के फूल हैं। हर फूल खूबसूरत भी है, हर फूल की क्या कहते हैं खुशबू मुख्तलिफ है। मजहब तफरीक का नहीं बल्कि इत्तेहाद और एहतराम इंसानियत की तालीमात देता है। ऐसे में पेशावर कैंट का ये तारीखी चर्च आज भी मजहबी आज़ादी की अक्कासी करता नजर आता है। मजहब इंसानियत का एहतराम सिखाता है, इसकी जिंदा मिसाल पेशावर कैंट में मुत्तसिल इबादत गाहें हैं जहाँ दो मुख्तलिफ मज़ाहिब एक साथ पनप रहे हैं। मिसाल साजिद, PTV न्यूज़ पेशावर। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। यहाँ पर आपको अपडेट करें कि वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि मुल्क भर और बिलखुसूस बलोचिस्तान में शदीद बारिशों और सैलाब की वजह से मुतासरा अवाम के साथ इजहार यकजहती के तौर पर जश्न आज़ादी की डायमंड जुबली तकरीबात के सिलसिले में डी चौक में आज मुनक़िद होने वाला कॉन्सर्ट और मिली नगमों का मुकाबला मौख़र कर दिया गया है और ये फैसला इस तनाजुर में किया गया है कि बलूचिस्तान में शदीद बारिशों की वजह से तमाम लोग मुश्किलात में हैं। बिल्कुल नाज़रीन, वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात मरियम औरंगज़ेब की जानिब से एक पैगाम जारी किया गया है जो कि आपके साथ हम शेयर कर रही हैं। मुल्क भर बिलखुसूस बलूचिस्तान में शदीद बारिशों और सैलाब की वजह से मुतासरा अवाम के साथ यकजहती के इजहार के तौर पर जश्न आज़ादी की डायमंड जुबली तकरीबात के सिलसिले में डी चौक में आज मुनक़िदा मिली नगमों का मुकाबला और कॉन्सर्ट को मौख़र कर दिया गया है। ये उन्होंने ट्वीट भी किया है और हम आपके साथ ये पैगाम भी जो है वो शेयर कर रहे हैं। मौसम के हवाले से ही हमने आपको कुछ दीगर खबरों से भी आगाह किया था। यहाँ पर एक और ख़बर हम शामिल करेंगे। आपको बताएं कि रेकोडिक मुआहिदे के दोबारा आगाज़ के बाद ताजिरों और ट्रांसपोर्टर्स की तवज्जो पाक ईरान सरहदी शहर तफ्तान पर मरकूज है। इस बारे में रिपोर्ट करेंगे वकार अहमद। रेकोडिक प्रोजेक्ट पर आगाज के बाद कोयटा और तफ्तान के दरमियान आमदरफ्त बढ़ना शुरू हो चुकी है। कोयटा से 670 किलोमीटर के फासले पर पाक ईरान सरहदी शहर तफ्तान एक अहम तिजारती पॉइंट भी है। कोयटा टू तफ्तान रोजाना 20 से 25 बस चलती। ज़ायरीन भी है, बलोच भी है और हमारा जो पाकिस्तान का जो भी है, मैं उन सब के खिदमतकार हूँ। तफ्तान के अवाम के लिए हम लोगों ने अच्छी खासी सर्विस भी का आगाज़ किया हुआ है। तफ्तान शहर के दूसरी जानिब ईरान यानी सीस्तान बलोचिस्तान, जहां मीर जावा से ईरानी तिजारती सामान तफ्तान, बलूचिस्तान और दीगर इलाकों तक लाया जाता है। ईरान, इराक और शाम जाने वाले ज़ायरीन के साथ ज्वाइंट बॉर्डर कमीशन के मुआहदे के तहत सरहद के दोनों अतराफ बलोच कबाइल को 15 रोजा राहदारी पर आमद-ओ-रफ्त की सहूलत मैसर है। पाकिस्तान रेलवे के लिए भी मौका है कि ब्रिटिश टाइम में कायम किए जाने वाले रेलवे नेटवर्क को मौसर बनाए। वकार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। नाज़रीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज हेपेटाइटिस से बचाव और उसके खिलाफ आगाही का दिन मनाया जा रहा है। रिपोर्ट करेंगे यासिर हुसैन। हेपेटाइटिस यानी यरकान एक मूजी मर्ज है। दुनिया भर में इस वक्त 35 करोड़ अफराद इस मूजी मर्ज में मुब्तला हैं। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक पाकिस्तान हेपेटाइटिस के मरीजों का शिकार दूसरा बड़ा मुल्क है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक दुनिया भर में रोजाना 4000 के करीब अफराद इस मर्ज के बाइस मौत के मुंह में चले जाते हैं।
जबकि सालाना ये शरह 10 लाख से जायद है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ पाकिस्तान में हर साल 1.5 लाख से जायद अफराद इस मूजी मर्ज की वजह से जान से हाथ धो बैठते हैं। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में हेपेटाइटिस की सिर्फ 2 अक़साम बी और सी के ही 1.5 करोड़ मरीज मौजूद हैं। पाकिस्तान में हेपेटाइटिस से बचाव के हिफाजती टीके लगवाने का रुझान कम है। यही वजह है कि इस मर्ज का फैलाव तेजी से जारी है। माहिरीन का कहना है कि इस्तेमाल शुदा सिरिंजों का दोबारा इस्तेमाल, गंदा पानी, गैर मयारी और नाकिस ग़िज़ा हेपेटाइटिस का सबब बनने वाली बड़ी वजूहात हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक हेपेटाइटिस के मर्ज से बचने के लिए एहतियात ही बेहतरीन तरीका है, जिससे आप खुद को इस मूजी मर्ज से बचा सकते हैं। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, इक़्तिसादी प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मज़ीद किसी भी खबर या अपडेट के लिए देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।